Good morning, students. In the previous lectures, we have completed till Fleming right hand rule. Actually, in the session 2020-21, the last topic, electric generator and domestic electric circuits, have been deleted. Okay, so we will focus up to here only. And now we will see some of the exercise questions of the exercise. Okay, so let us see the question number 1. Which of the following correctly describes the magnetic field near the long straight wire? So we have seen that in the question number 1, magnetic field due to a long straight wire. So by applying the right hand thumb rule, what we will find that direction of magnetic field in the form of concentric circles. What we have to do, we have to hold the current carrying wire in the right hand and thumb should be along the direction of the current and the curl of fingers indicate the direction of the magnetic field. Okay, so this thing we have learned. So this is your first option, this one D is the correct answer. The phenomena of electromagnetic induction is the process of charging a body, the process of generating magnetic field due to a current passing through a coil, producing induced current in the coil due to relative motion, and the process of rotating in the. So here the correct option is C, electromagnetic induction. I have told you in the electromagnetic induction what we are doing, we are changing the magnetic field. When the magnetic field is changing, current is induced. Okay, so the correct option is C. The device used for producing electric current is generator, galvanometer, ammeter and motor. So here the correct answer is electric generator. So what we have studied, electric motor, EM means electric motor, electric energy into मैकेनिकल एनर्जी. लेकिन जो जनरेटर होता है, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. देखो इसका नाम दिया है जनरेटर, जनरेट करता है, लेकिन ऐसा कुछ जनरेट नहीं करता है, जस्ट इट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर. ठीक है, सो हियर द करेक्ट आंसर इज electric generator which converts mechanical energy into electrical energy. The essential difference between AC generator and DC generator is, अब AC generator और DC generator देखो, AC का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग करंट का मतलब करंट की वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है, जबकि डायरेक्ट करंट होता है तो डायरेक्ट करंट में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है. समझ में नहीं आता इसको ऐसे समझें कि जो घर में जो करंट आता है वो आता है अल्टरनेटिंग करंट, और जो बैटरी से करंट जो निकलता है वो कौन सा होता है, डायरेक्ट करंट. ओके, तो यहाँ क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या डिफरेंस है. तो डीसी जनरेटर में ध्यान रखना, डीसी जनरेटर में हम लोग यूज़ करते हैं स्प्लिट रिंग्स. ठीक है, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स और एसी जनरेटर में होता है स्लिप रिंग्स. ओके, सो द नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट. देखो जी, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो सर्किट के अंदर करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होता है. ओके, तो बोलते हैं ना शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई, तो ऐसे. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. तो ट्रू और फॉल्स बताना है इसमें. एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो जी गलत है ये. इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी. ओके, नाउ द सेकंड वन, इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. यस, इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. The field at the center of a long circular coil carrying the current will be parallel to the magnetic straight lines. देखो जी, सर्कुलर वायर पढ़ाया था मैंने, तो बताया था कि जैसे करंट ऐसे आ रहा है तो यहाँ भी हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे डेवलप होगी, सर्कुलर. ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब सेंटर में आते आते ये क्या होती हैं, स्ट्रेट हो जाती हैं. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगा, सही है.
The wire with a green insulation is usually the live wire of an electrical supply. नहीं जी, तीन टाइप के वायर होते हैं डोमेस्टिक वायरिंग में। एक होता है रेड, एक होता है ग्रीन और एक होता है ब्लैक। तो रेड वाला जो होता है ये होता है लाइव वायर, ग्रीन वाला जो होता है वो होता है अर्थ वायर, और जो ब्लैक वाला होता है ये होता है न्यूट्रल वायर। ओके, लिस्ट टू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं? तो देखो जी, एक बार मैग्नेट के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, स्ट्रेट वायर है उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, सर्कुलर वायर है उसके आसपास भी होता है, सोलेनॉइड के आसपास भी होता है। तो एनी टू यू हैव टू राइट। हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जब मैंने सोलेनॉइड पढ़ाया था तो उस समय मैंने बताया था कि एक सोलेनॉइड जो होता है एक बार मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करता है। तो सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड लार्ज नंबर ऑफ द हेलिकल कॉइल्स लाइक दिस। अगर इस एंड से मैं देख रहा हूँ, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर साउथ पोल और यहाँ पे क्या होता है नॉर्थ पोल। तो इस तरीके से एक सोलेनॉइड भी जो होता है वो क्या बिहेव करता है, ये बार मैग्नेट की तरह। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब हम लोग ट्रेस करते हैं तो देखते हैं कि वो भी क्या होता है, एक बार मैग्नेट की तरह ही होता है। अब देखो, सपोज इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है। अगर एक मैग्नेट को ले आओगे इसके तरफ, तो अगर नॉर्थ पोल आ रहा है और ये साउथ एंड है, अगर अट्रैक्शन हुआ तो इसका मतलब ये साउथ पोल है। अगर नॉर्थ पोल ले आ रहे हैं, यहाँ पर अगर अट्रैक्शन हुआ तो या दैट मीन्स ये कौन सा एंड है, साउथ एंड है। और अगर सपोज करो कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो अगर नॉर्थ एंड आ रहा है, अगर रिपल्शन हुआ तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। तो इस तरीके से एक मैग्नेट से भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा एंड नॉर्थ है और कौन सा एंड साउथ है। नेक्स्ट इज फोर्स। व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द When is the force experienced by a current carrying conductor in the magnetic field is largest? कब जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा मैक्सिमम? तो फोर्स एक्सपीरियंस कब मैक्सिमम होगा? जब ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। हमने देखा था यू शेप्ड मैग्नेट था, एक वायर था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ और करंट नीचे था, तो फोर्स जो था वो क्या लग रहा था, बाहर की तरफ। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर, जो फोर्स लग रहा था वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर था, इसके भी परपेंडिकुलर था। तो लार्जेस्ट कब होगा? जब ऑल द थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर विथ योर बैक टू वन वॉल। इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम योर बैक वॉल towards the front wall is deflected by a strong magnetic field to your right side. ठीक है, what is the direction of the magnetic field? तो देखो जी, ये बोल रहा है कि जैसे मैं रूम में बैठा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ और ये मेरा है बैक साइड और ये है मेरा फ्रंट साइड। ठीक है, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, तो क्या हो रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन बीइंग मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल, एक बैक वॉल पीछे से एक इलेक्ट्रॉन बीम बैक से फ्रंट में, जैसे मैं बैठा हूँ ये मेरा फ्रंट है, ये मेरा बैक साइड है, तो पीछे से एक इलेक्ट्रॉन बीम निकल कर आगे जा रही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द back wall towards the front wall is deflected by a strong magnetic field to your right side. अब देखो जी, करंट पीछे से आया, सॉरी इलेक्ट्रॉन पीछे से आया और कुछ चेंजेस से बाद इस करंट से जो है ना वो इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्ट हो गया कहाँ पर, राइट हैंड। राइट हैंड का मतलब क्या है, इस तरफ ऐसे दिया क्वेश्चन में, मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द wall back towards the front wall is deflected by a strong magnetic field to your right side. Okay, तो इलेक्ट्रॉन बीम जैसे ही आगे की तरफ प्रोजेक्ट हुआ और मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो क्या हो गया, राइट हैंड की तरफ में डिफ्लेक्ट हुआ। जैसे मैं ऐसे बैठा हूँ, ये मेरे ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। देखो जी, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, बताया था करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इधर
क्योंकि जिस साइड में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है करंट की डायरेक्शन उल्टी होती है, मैंने बताया था पहले। और जैसे बैठा हूँ इधर, तो राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड के कारण डिफ्लेक्शन हो गया, यानी ये आपका इधर राइट साइड हो गया, इधर क्या होगा, ये राइट साइड होगा। जैसे आप यहाँ बैठे हैं तो ये राइट साइड होगा, ये आपका लेफ्ट साइड होगा। तो राइट साइड की तरफ में क्या हुआ, फोर्स लगा, राइट साइड की तरफ में फोर्स, डिफ्लेक्शन का मतलब फोर्स लगा। तो अब आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी। सो फॉर दैट व्हाट यू विल यूज, यू विल यूज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स फील्ड करंट। सो यू हैव टू एडजस्ट योर फिंगर्स। तो फोर्स फील्ड करंट, करंट फोर्स कहाँ पर है, नीचे, करंट कहाँ पर है, इधर, फोर्स नीचे, फोर्स फील्ड करंट, करंट उधर है। सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड्स। समझ में आया क्या? क्रॉस, क्रॉस मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द इनवर्ड डायरेक्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ड्रॉ a label diagram of electric motor. Everything in one video I have prepared for the electric motor, everything I have described about its construction, working, principle, diagram also, so that you see. ठीक है, now name some devices in which electric motors is used. So in that video also I have, at the end of the video I have told you what are the uses of electric motor. A coil of insulated copper wire connected to a galvanometer, what happens when the bar magnet, so एक ये गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर के ये दो लीड्स हैं और इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉपर वायर है। ये आप इसको समझे ऐसे, जैसे हमने समझा था इसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कॉइल है, कॉइल गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। तो क्या बोल रहा है, when a magnet is pushed into the coil, जब मैग्नेट को इसके तरफ पुश करेंगे तो what will happen, we will see that magnetic field lines are coming closer to the coil, so the magnetic field will change, magnetic field will increase and current is induced in the coil. Withdrawn, when the magnet is withdrawn means taken away, again the magnetic field will decrease, the galvanometer will again show the deflection but now in the opposite direction. Okay, when held stationary inside the coil, so when magnet is held stationary, so I have told you कब मैग्नेटिक, कब इसके अंदर करंट आता रहेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती रहेगी, या तो इसके तरफ आएगा या तो इससे दूर जाएगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू द इलेक्ट्रिक करंट, बट हियर इफ द मैग्नेट इज स्टेशनरी, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं होगी, तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। Two circular coils A and B are placed close to each other. If the current in the coil A is changed with some current is induced in the coil B. Yes, ये जो आंसर, इसका आंसर है फैराडे का एक्सपेरिमेंट नंबर 2। दो कॉइल्स लिया, एक को बैटरी से और की से जोड़ा और कॉइल नंबर 2 को जोड़ा था किससे, गैल्वेनोमीटर से। जब यहाँ से जैसे करंट ऑन करेंगे, so what will happen, current will increase from 0 to maximum, so magnetic field will also increase, and here as this coil number 2 it is placed closer to the first coil, the magnetic flux changes and current is induced. ठीक है, this is the Faraday's experiment number 2, और ये जो था पिछला वाला क्वेश्चन Faraday experiment number 1. State the rule for determining the direction of, अब हमें बताना है कि किस चीज में कौन सा रूल लगता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग करंट, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें कौन सा रूल लगता है मैग्नेटिक फील्ड। एज यू नो मैग्नेटिक फील्ड इज अ विच क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट इज टेस्ला। सो in the straight current carrying conductor, which rule is used to determine the direction of the magnetic field, so it is right hand thumb rule. क्या कहता है right hand thumb rule, hold the current carrying wire in the right hand such that thumb should be along the direction of the current. So here what we have to do, अब मैंने कहा hold the current carrier, यानी किसी तार में करंट आ रहा, जाकर उसको पकड़ लिया, ऐसा नहीं होता जी। इमेजिन करना है, what we have to do, we have to imagine
that a current carrying wire is held in the right hand such that thumb should be along the direction of the current and the curl of the fingers represents the direction of the magnetic field. Okay. Now the second part, force experienced by a current carrying straight conductor in the magnetic field. So for this we have to use the Fleming left hand rule. Force, field, current. The thumb finger indicates the force experienced, index finger indicates the direction of the magnetic field, and the middle finger indicates the direction of the current. Okay. Now third one, current induced in the rotating magnetic field, the coil rotating in the magnetic field. So for that current induced, for that we will use the Fleming right hand rule. There is no need to be confused in the Fleming left hand rule and in the Fleming right hand rule. Whenever the process of electromagnetic induction or whenever we are talking about the induced current, we have to use the Fleming right hand rule, and whenever the force experience, the force experience, so here we will use the Fleming's left hand rule. Okay. Now remaining things have been deleted from your syllabus. Okay, thank you.